Hi, Shant. Look, in our last classes, we have discussed our topic. We start with our topic pairs of linear equations in two variables. यहाँ बेटा हमने अपने जनरल इक्वेशंस देखे. वी हैव सीन द इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Also, we have a condition that a1 square plus b1 square not equal to 0 and a2 square plus b2 square not equal to 0. Means simultaneously both a1 b1 and a2 b2 cannot be 0 because our equation reduced to a then linear equation in one variable there. Then लास्ट क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था. वी हैव हियर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. जब वी हैव इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हमने वहाँ पे देखा था कि ऐसे इक्वेशंस को हमारी क्या है. अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टाइप लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इट्स अ linear equation in two variables. It's a represent a straight line. But now in this level of class 10th, we have a pairs of linear equation in two variables. We have such two lines there, two general equations form of there a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then now in this cases when we have a pair of linear equation, then we have a obviously in we have a plane. In plane then we are going to draw the graph there. Then we have two lines there in the plane. Then when we have two lines in the plane, then there are only three cases arises there. First of all, that maybe both lines are intersecting. Means if the lines are intersecting, means then it gives a unique solution there. Our solution point is what? With the intersection point of the lines is our solution point there. Maybe possibility. Second possibility is that our both lines are parallel to each other. In the case our lines are parallel to each other, in this case we are not going to find out any common solution there. If we are not going to find out any common solution there, that means we are not going to be able to find out any solution there. And the third and last case is that it's maybe happen that our both lines are coincide to each other. In the third case, when our lines are coincide to each other, in this case what happened? Then we are going to find out infinite numbers of solution there. Then we have also used two terms there, consistent terms and inconsistent terms. We have can say that our system is consistent or inconsistent. In the terms of consistent means we have a solution of the system there. Maybe it's a unique solution or infinite number of solution. In the both cases, when we are going to find out unique solution or we have an infinite number of solution, in the both cases our system is known as consistence. And the case where our two lines are parallel to each other, in the case we are not going to find out any common solution on a common point there, we are going to find out any either solution there, means it's a case of a inconsistency. Okay बेटा. देन हमने लास्ट क्लासेस में क्या देखा कि हमने वी आर गोइंग टू कंपेयर द रेशियोज कोफिशिएंट्स को रेशियोज लेके भी हमने क्या किया हम बता कर सकते हैं. इफ़ वी हैव अ कंडीशन दैट a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b2, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन्स हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन हम रेशियोज की कंपेयर करते हैं. इन द केस व्हेन वी हैव a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर हमारे पास ये केस है, मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन. मीन्स हमारी लाइन्स क्या होंगी, हमारी लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगी और हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा वहाँ पे. देन इफ़ यू हैव a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इस केस की बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी लाइन्स होंगी वो पैरेलल्स होंगी. ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग होगी और लाइन्स बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. देन in algebraic method we are not going to find out any solution there. Then third case when we have a1 by a2 equal to b2 equal to c1 by c2, in third case जब ये कंपेयरिंग रेशियो हमें ऐसे मिलेगा तो हमारा जो लाइन्स होंगी वो दो पेयर्स ऑफ लाइन्स होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, इट्स अ कोइंसाइडिंग लाइन व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देयर. ठीक. तो देन आफ्टर दैट हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, हमने वहाँ कुछ क्वेश्चंस लगाए लास्ट क्लासेस में. देन हमने एल्जेब्रिक मेथड की बात की जहाँ पे हमने दोनों मेथड डिस्कस किया था, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे हमने उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज की क्लास की बात करते हैं. देन हमारा जो आज की क्लास जो हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, जो क्लास बेस्ड होगी वो होगी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ. मोस्टली पेयर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जब बेटा आपके पास इक्वेशंस हैं, पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैं, देन आप इजीली आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो. बट जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे आपको पेयर्स ऑफ लाइंस का इक्वेशंस फॉर्म करना पड़ता है.
देन यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस देयर। आपको वर्ड प्रॉब्लम आप मोस्टली आप क्या करिए, आप वर्ड प्रॉब्लम्स बनाइए, इक्वेशंस फॉर्म करिए। इक्वेशंस फॉर्म करेंगे देन आपके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किसकी, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी। देन जो वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं यहाँ पे वो बनेंगे आपके बेटा फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, आपसे फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, एज बेस्ड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आपसे। वी हैव फर्स्ट फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, एज बेस्ड प्रॉब्लम, देन वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम। तीसरा क्वेश्चन जो आपका वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, उसको मोस्टली बोल लीजिए। देन फोर्थ आपका बेटा नंबर एंड डिजिट प्रॉब्लम, देन बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स। तो मोस्टली देन कमर्शियल क्वेश्चन भी बनते हैं वहाँ पे। देन मोस्टली ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स बनेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारी फोकस होगी वो वर्ड प्रॉब्लम के साथ होगी, और स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। जो हमारी प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम है वो फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है। इट्स गिवन दैट इन क्वेश्चन अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added to both the numerator and denominator. If however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. What is the fraction? Then we have to find what is the fraction there. ठीक है बेटा। of फर्स्ट ऑफ ऑल जब वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पे तो हम इक्वेशंस को, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉलिडेट करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। फर्स्ट लाइन इज दैट अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। ध्यान दीजिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added to if our 1 is added to both numerator and denominator. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट क्या करेंगे, लेट व्हाट इज आवर फ्रैक्शन, लेट आवर फ्रैक्शन बी, क्या होता है हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म x/y। हमने फ्रैक्शन का फॉर्म x/y ले लिया, लेट आवर फ्रैक्शन बी x/y। नाउ देन a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. Then we are going to according to question mentioned here, we are going to add 1 to the numerator as well as 1 to the denominator. Then our fraction becomes 4/5. ठीक है बेटा, इट्स गिवन दैट कि हमारा जो फ्रैक्शन है इट्स बिकम 4/5 व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड 1 न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो x में भी 1 ऐड किया, y में भी 1 ऐड किया। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन फ्रॉम हियर वी गेट 5x + 5 = 4y। ठीक है, 5x + 1 × 5 + 4y + 4। देन वी आर गोइंग टू इसको फर्दर सॉल्व किए, सिंप्लीफाई किए, देन वी गेट इट्स 5x - 4y, 5x - 4y एंड 5 - 4 व्हाट वी गेट। या इसको शिफ्ट कर लेते हैं, 5x - 4y इज इक्वल टू -1 और इसको इक्वेशन 1 फॉर्म किया। ठीक है, अभी तो आधा क्वेश्चन पढ़ा देना। नाउ वी हैव वन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन देयर। अभी उसमें जो हमारी पेयर्स है उसमें से एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है, दूसरे को फॉर्म करते हैं। अगेन इट्स गिवन दैट if however 5 is subtracted from both numerator and denominator। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर however we are going to subtract 5 from both numerator and denominator, then our fraction becomes 1/2। ठीक है, again then we are going to use again, now we have to subtract 5 from numerator as well as denominator, then our fraction becomes 1/2। ठीक है बेटा, हमने न्यूमरेटर से हमने 5 को सब्सट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर से 5 सब्सट्रैक्ट किया, जो हमारा फ्रैक्शन है इट्स बिकम 1/2। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन वी गेट 2x - 10 y - 5। 2x - 10 y 1 से मल्टीप्लाई किया, y - 5 फर्दर सॉल्व कर लेंगे, देन वी गेट आवर सेकेंड इक्वेशन इज एज 2x - y इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमने वर्ड प्रॉब्लम्स लिया, जहाँ पे अभी बेटा हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर लिए। ठीक है, विद कंडीशंस, गिवन कंडीशन। नाउ वी हैव टू पेयर्स ऑफ इक्वेशन देयर। फर्स्ट वन इज 5x - 4y = -1 एंड सेकंड वन इज 2x - y = 5। ठीक, अभी पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास है। अभी आप फ्रीडम है यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ, आपके पास 2 मेथड है सॉल्व करने के इक्वेशंस को, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। तो आपके पास फ्रीडम है, अब हम दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या अप्लाई करते हैं। वी हैव 5x - 4y
इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, क्या करते हैं कि -4y, हियर वी हैव y, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ वो इक्वेशन 2 becomes, now it becomes 4 to 8x minus 4y equal to 4 5 20, named as a 2 prime, and equation 1 is what, 5x minus 4y equal to -1। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन किया था। अभी क्या है, हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं अपना एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे हमने क्या किया बेटा, जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो हमने इक्वल कर लिया। अब साइन देखते हैं, साइन हमारी क्या है, दोनों सेम नेगेटिव है। देन वी आर गोइंग टू बी सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 प्राइम, इक्वेशन 2 प्राइम से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी। नाउ हियर वी गेट 8x माइनस 5x, वी गेट 3x माइनस 4y प्लस 4y, ये कैंसिल हो गया, 20 एंड प्लस 1 वी गेट 21, 3x को टू 21 फर्दर सॉल्व करेंगे, फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 7। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज आवर 7, हमें x की वैल्यू बेटा 7 मिल गई। ठीक है, एलिमिनेशन में हमने y को एलिमिनेट किया, x की वैल्यू 7 मिल गई। अब इसमें से किसी एक फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देन वी हैव 5 इंटू 7 माइनस 4y इक्वल टू -1। देन हियर वी गेट 7 5 35 माइनस 4y इक्वल टू -1। Then we get -35. We are going to shift 35 to our right. Then we get -35, and -1 we get -36. Then we have -4y equal to -36. We are going to divide this equation by -4. Then finally we get the value of y is 9 there. ठीक है बेटा, हमने इक्वेशन फॉर्म किया। इक्वेशंस के बाद हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दिया। We get the value of x and y. We get the value of x is 7 and y is 9. Then what is our fraction? We have to find our fraction. Then our fraction is what? 7 by 9. जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा? What is our final answer? It's 7 by 9. ठीक है, आप इसको फर्दर आप इसको आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। फ्रैक्शन 7 by 9 है। फर्स्ट कंडीशन था कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 4 by 5 if we are going to add 1 to the both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप ऐड कर लीजिए, 7 plus 1 we get 8, हमें 8 मिल जाएगा। 9 plus 1 we get 10, सिंप्लीफाई करेंगे, then we get 2 4 8 2 5 10, our fraction becomes 4 by 5. And also we have given that in second condition that if we are going to subtract -5 from both numerator and denominator, then our fraction becomes 1 by 2. Then 7 minus 5, 7 by 9 है, 7 minus 5 कर लें and 9 minus 5 कर लें। Here we get 2, here we get 9 minus 5 4. After simplification we get 1 by 2. मीन्स आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमने आंसर भी वेरीफाई कर लिया, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, 7 by 9 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। अभी हमने एक फ्रैक्शन क्वेश्चन लगाया, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। सेम टाइप के फ्रैक्शन क्वेश्चन आपको जहाँ से जैसे ही मिले आप उसको वैसे ही बना लीजिएगा। ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं कुछ। बेसिकली हमने बोला कि हमारे पास जो मोस्टली प्रॉब्लम्स है वो क्या है, एज प्रॉब्लम्स, फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, बोर्ड एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स एंड सम कुछ कमर्शियल प्रॉब्लम्स। वहाँ पे मे बी इट्स क्वाइन रिलेटेड, हमारे पास 25 पैसे क्वाइन है या कुछ भी एज प्रॉब्लम्स हमारे पास है। तो आप ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस को ही आप लीजिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया इट्स बिलोंग्स टू ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, वो भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ आ सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स गिवन दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, in a cyclic quadrilateral ABCD, we have given angles there. In a cyclic quadrilateral ABCD, angle A is equal to x plus 7 degree, angle B is equal to y plus 8 degree, angle C is equal to 3y plus
angle C is equal to 3y plus 23 degree and angle D is equal to 4x plus 12 degree. Then find all four angles of the cyclic quadrilaterals. ठीक है, अभी ये जो भी क्वेश्चन ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो इट्स बेस्ड फ्रॉम आवर ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास गिवन है कि हमारे पास ए बी सी डी क्या है. व्हाट इज गिवन दैट वी हैव ए बी सी डी इज व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पता है क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके आपके जो फोर वर्टिसेस हैं वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं. और क्या प्रॉपर्टी है, जो उनके अपोजिट एंगल्स के सम होते हैं. व्हाट वी हैव एंगल, जो हमारे पास वी हैव गिवन इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी गिवन है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी यूज करेंगे वहाँ पे. क्या है कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो जो उनके अपोजिट एंगल्स का सम होता है मीन्स ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया, ठीक है. वर्टिसेस बाहर होकर एक्सटेंड करके भी हम कर सकते हैं, इनसाइड भी हो सकता है वहाँ पे. देयर आर सो मेनी केसेस देयर, तो उस पर आप मत जाएगा. हाउ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द एंगल ए प्लस सी, जो हमारे पास एंगल ए प्लस सी ऑपोजिट एंगल्स होगी उसकी सम क्या हो जाएगी 180 डिग्री. एंड सिमिलरली द सम ऑफ एंगल बी एंड डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो द सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री. देन आपको ये फोकस करना है यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपकी बेसिक्स के कॉन्सेप्ट बेटा. देखिए मैथमेटिक्स में जो भी कुछ पीछे की जो चीज़ें आपने रीड की है 9th में, वो चीज़ें भी आपके माइंड में होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है. अब ये हमारी बेसिक्स चीज़ें जिसका यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. तो प्रॉब्लम्स है नोट कर लेते हैं. इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए इज x plus 7 degree. What is our angle A? It's given x plus 7 degree. And angle B is our y plus 8 degree. Angle B y plus 8 degree. Angle C 3y plus 23 degree. Angle C की वैल्यू इट्स गिवन 3y plus 23 degree and angle D is 4x plus 12 degree. Now our angle D is 4x plus 12 degree. Look, now we have problem. हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया. हमारे पास गिवन है, we have given that ABCD is a cyclic quadrilateral and our angle A is given by x plus 7 degree, angle B is what, y plus 8 degree, angle C is 3y plus 23 and angle D is 4x plus 12 degree. Now we have all angles there. अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, उसका यूज करेंगे अब. नाउ देन इन दोनों का सम लेंगे इक्वल टू 180 करेंगे और एंगल बी डी का सम लेंगे इक्वल टू 180 करेंगे. देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. देन आफ्टर दैट कोई भी मेथड यूज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. देन एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. देन लेट्स वी आर गोइंग टू डू सॉल्व दिस. नाउ सम ऑफ एंगल ए प्लस सी, एंगल ए एंगल सी का सम मेजर करते हैं. नाउ लुक वी हैव x plus 7 and 3y, then we get x plus 3y and 23 plus 7 means plus 30. क्या हो जाएगा सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको सॉल्व कर लेते हैं. देन फर्दर आफ्टर फर्दर सॉल्यूशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x plus 3y इज 150 डिग्री. ठीक, टेक दिस इक्वेशन 1. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया बेटा, ठीक. ऑल्सो व्हाट वी हैव, sum of angle B plus angle D is what? It's also 180 degree. B is y plus 8. This is 4x. Then we get 4x plus y, and the sum of 12 plus 8 we get 20 is equal to 180 degree. Further इसको simplify कर लेते हैं. Then we get 4x plus y is equal to 180 minus 20. We get 160 degree. Now we have pairs of equation there. Pairs of linear equation two variables. हमने जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन से अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. हमने दो इक्वेशन हमारे पास है. फर्स्ट इज x plus 3y इक्वल टू 150 डिग्री, सेकेंड इज 4x plus y इक्वल टू 160 डिग्री. अगेन सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी अप्लाई कर लेते हैं. चलिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं. सेकेंड इक्वेशन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3.
बेटा यहाँ पे लिखना है, आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, देन आवर इक्वेशन 2 रिड्यूस टू क्या हो जाएगा 4x इंटू 3, इट्स 12x प्लस 3 इंटू वाई 3y, देन इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा 2 प्राइम हो गया 480, देन x प्लस 3y इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है भाई, क्या हो गया, हमने y के कोफिशिएंट को हमने इक्वल कर लिया, साइन सेम है यहाँ पे, वी हैव अ सेम साइन देयर, देन वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट इट, देन ठीक है 3y माइनस 3y, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देन 12x माइनस x वी गेट 11x, and here we get 480 minus 150 0 8 5 3 413 330, 11x equal to 330, then from here the value of our x is what 11 3, then we get the value of x is 30 डिग्री। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 30 मिल गई, हम किसी भी क्वेश्चन 1 एंड 2 में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट कर लेते हैं, 1 में पुट करेंगे 30 plus 3y equal to 150 degree, then from here 3y equal to 150 minus 30 means we get 120, and from here for dividing by 3 to the both side we get the value of y is 40 degree। Look, अभी हमारा वर्क यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, we are just going to find out the value of x and y, but we have to find out what, we have to find out here our angles there, we have to find out angles ABCD। So now we have get the values of angle x is 30 degree and y is 40 degree, but we have to find out the values of our angles there। तो आते हैं फर्स्ट एंगल पे, एंगल ए, एंगल ए इज गिवन एज, क्या गिवन है, x plus 7, our x is 30, then 30 plus 7, our angle A is 37 degree। Now we are going to find angle B, angle B is y plus 8, we have the value of y is 40, 40 plus 8, it's a 48 degree। Angle C, angle C is given as 3y plus 23, the value of y is 40, 3 into 40 it's a 120 plus 23 means 143 degree, and the value of our angle D it's a 4x plus 12, value of x is 30 means we get 120 plus 12 means 132 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स के बाद भी आप फर्दर वेरीफाई कर सकते हो, एंगल ए एंगल सी का सम 180, और ये इक्वेशंस बना के भी आप कर सकते थे, एंगल ए एंगल सी का सम 180 आना चाहिए, 37 प्लस 143 50 प्लस 30 180, एंगल बी और डी का सम आना चाहिए 180, 132 प्लस 8 40, 40 प्लस 40 180, then finally we get our answer is what, we have the values, angle A is 37, angle B 48, angle C 143 degree and angle D 132 degree। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी एक डिस्कस और ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लुक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं हम अपने बोट प्रॉब्लम का। ठीक है बेटा, बोट एंड स्ट्रीम जो प्रॉब्लम लेंगे वहाँ पे जो हमारी चीज़ है उसको क्वेश्चंस को लेने से पहले आपको समझना पड़ेगा। बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स में हमें दो वर्ड यूज होते हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेटा आप वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास बोट की भी स्पीड है, हमारे पास करंट की भी स्पीड है। अब तो वहाँ पे दो तरह की डायरेक्शन है, स्पीड है तो वहाँ पे डायरेक्शन होगी बोट, तो हमारे पास दो वर्ड आते हैं, फर्स्ट इज आवर अप स्ट्रीम एंड सेकेंड इज आवर डाउन स्ट्रीम। मीन्स अप स्ट्रीम क्या हुआ, हमारी बोट की डायरेक्शन है और हमारी करंट की डायरेक्शन है। अगर ये दूसरे को अपोज करेंगी, ठीक है, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट अपना और आपकी जो करंट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली ये जो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो आपकी जो स्ट्रीम की स्पीड है वो अपोज करेगी स्पीड ऑफ द बोट। तो इस केसेस में हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव स्पीड के साथ।
whenever we have used the term upstream केस में जो हमारी रेटिव स्पीड होगी, it's a x किलोमीटर पर आवर and it's a current speed y किलोमीटर पर आवर, then it's a x minus y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम केस होगा तो जो आपके बोट की स्पीड होगी और जो आपकी करंट की स्पीड होगी उसकी डायरेक्शन सेम होगी। अभी आप सपोर्ट करेगा, जो आपका करंट का फ्लो है वो सपोर्ट करेगा, उसको बूस्ट करेगा स्पीड को, बोट की स्पीड को। तो उस केस में जो डाउन स्ट्रीम केस में जो आपकी रेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में सेटअप करना है। उसके बाद जैसे आपको रेटिव स्पीड आपका टर्म्स वहाँ पे हम रेटिव स्पीड टर्म्स ही वहाँ यूज़ करेंगे उस प्रॉब्लम्स के साथ। देन बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, क्वेश्चंस बनाइए और उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। We have given that Ritu can row downstream 20 kilometers. It's given that Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours. Ritu can row in downstream. It's given that in downstream, it's cover 20 kilometers in 2 hours. 20 kilometers in 2 hours. Also given in the case of upstream there. In the case of upstream, it covers a 4 kilometer in 2 hours. 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of current. Find the speed of rowing in still water and speed of the current. Find her speed. ठीक है, अभी हमें जो प्रॉब्लम है उसमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ऋतु एंड हमें स्टील वाटर की स्पीड को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चंस में। देन वी स्टार्ट विद लेट ऋतु स्पीड इन स्टील वाटर इज व्हाट x किलोमीटर पर आवर। जब पानी शांत है उस केस में उसकी स्पीड ऋतु की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लिया, एंड स्पीड ऑफ करेंट, जो करेंट की स्पीड है बेटा वो ले लिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव गिवन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस गिवन है, ठीक। तुम्हारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है, आवर टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जो हमारी स्पीड होगी उसको हम यूज करेंगे अपना रिलेटिव स्पीड का टर्म्स बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट केस फर्स्ट में बात, इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम की जब बात करेंगे, व्हाट इज आवर टाइम, इट्स टेक 2 आवर। व्हाट इज आवर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज आवर 20 किलोमीटर। व्हाट इज आवर स्पीड, अब हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लेंगे डाउन स्ट्रीम केस में क्या होगा, जो आपकी ऋतु की स्पीड है और जो करंट की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू पुट हियर x प्लस वाई एंड देन इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ठीक है। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड फर्दर सॉल्व करेंगे, देन फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 10। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगेन इन द केस ऑफ अपस्ट्रीम केस में जो टाइम है अगेन इट्स 2 आवर, डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, स्पीड मैंने भी बात की स्पीड पे क्या लेंगे, वी टेक x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि अप स्ट्रीम केस है करंट की स्पीड अपोज करेगी। देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे, देन फ्रॉम हियर वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 2 to the 4। वी हैव इक्वेशन नंबर 2। और लुक वी हैव 2 इक्वेशंस, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। किसी एक को भी एलिमिनेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा, x plus x, we have 2x equal to 10 plus 2 12, then from here we get the value of x is 6 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पे पुट कर लीजिए x की वैल्यू 6 प्लस y इक्वल टू 10, then from here we get the value of 10 minus 6 4 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऋतु, जो ऋतु की स्पीड है स्टिल वाटर में इट्स 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज व्हाट, इट्स 4 किलोमीटर पर आवर। आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 2, ठीक है। देन इट्स ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या किया, हमने पेयर्स ऑफ रिलेशन 2 वेरिएबल्स में बेटा डिस्कशन किया उस वर्ड प्रॉब्लम्स
जहाँ पे हमने फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम देखा, हमने फिर वहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लम देखा, ज्योमेट्रिकल मेंसुरेशन बेस्ड प्रॉब्लम, फिर हमने डिस्कस किया किसके साथ, केस ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम। ठीक है, कल क्लास में फिर हम कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेंगे, वहाँ पे मे बी एज प्रॉब्लम क्वेश्चंस लेंगे और कुछ वर्क एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन भी लेंगे। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।